Hello my dear students. Today we have to discuss the reactions of aryl halides with metal. Before starting this, let us discuss first. These all reactions are very easy. First we studied the reaction, that one is the Woods reaction. Then after we have to study Woods reaction was with a sodium metal. Then after Woods fitting reaction. And third we have to study, that is only fitting reaction. So what was there in Woods reaction? It is a very easy reaction. 2 moles of haloalkane react with a sodium metal in presence of dry ether. And what was our product is alkane having double carbon with respect to Rx, and 2NaX is a byproduct. What is here in wood fitting reaction? And the general reaction of Woods fitting is, we have to take one is the ArX plus 2 moles of sodium metal plus Rx. See, this X and 2Na is removed, minus 2NaX, and this Ar and this are combined together. This is the coupling of 2R group. In Woods fitting, there is a coupling of one aryl group and one alkyl group. Here also you require dry ether, my friends. Don't forget, all this reaction takes place with a dry ether. What is there in fitting reaction? Already you got the idea. Here two alkyl group in Woods, alkyl as well as aryl in Woods fitting, and in fitting two aryl groups are 2 haloarine react with a 2 sodium metal, and what is obtained? We get biphenyl, 2 benzene ring combined together by releasing minus 2NaX. By this method you can remember easily the Woods fitting reaction. Is it clear? Okay, let us discuss one by one. Woods fitting. Woods already we studied. So Woods already completed. Okay. Now see, what is there in a Woods fitting reaction? 1 mole of haloarine. Another one is the haloalkane. React with a 2 sodium metal in presence of dry ether. And this benzene ring and this R group combine together by releasing 2NX right down here. Minus 2NX. Okay. You can give here one example also like this. Take chlorobenzene plus methyl chloride in presence of 2Na minus 2NaCl, dry ether. We get toluene, benzene and R group combined together. Okay. Describe yourself, write down the name here, chlorobenzene, give one reaction. And keep in mind, what was there in Woods? 2 alkyl group combined. What is here in Woods fitting? 1 aryl and alkyl combined. What is in fitting? 2 aryl group combined. Okay. 2 aryl group combined. See, it is very easy for you. Now, take 2 moles of chlorobenzene, write down name, 2Na, dry ether,
dry ether minus 2NaX and this 2 benzene ring combined. Write down like this. Okay. Or this is also not wrong. You can write like this also. From any carbon. Carbon, not any carbon. From the carbon where halogen is attached, from that carbon they fused here. See. You can write like this also. Then take here X. Okay. Write down here X. So like this it can be combined. You know very well. Now see. Another reaction, that is the reaction of haloalkane with Grignard reagent. Generally you know the Grignard reagent general formula is RMGX, ARMGX. RMGX already we prepared by reaction of aryl halide with a magnesium in presence of dry ether. One thing is clear here, all the reaction takes place with a dry ether. Okay, dry ether is not written, then mark 0, remember. Then after here is also dry ether. All the three reaction, Woods fitting and fitting, they are with a sodium. In Woods RR group combined, in Woods fitting ARR combined, and in fitting AR combined. Okay, what is there in a Grignard? Take aryl halide and magnesium. Very easy. Magnesium enter here. Magnesium enter between the halogen and the carbon of benzene ring, and we get like this MgX. This is also called Grignard reagent. What I told, the general formula of RMGX, R may be alkyl, maybe aryl, maybe alkynyl, maybe alkenyl. Refer that video. Okay. Now these reactions are asked in 2 marks. Woods fitting and Grignard reaction of haloarine. So these all reactions are most important because they are name reaction. Okay. So here the chemistry related haloalkane and haloarine is over. Now we have to learn about some important compounds of haloalkane and haloarenes. Okay. So we will discuss these compounds one by one. So write down the list of that compound. State the various uses of first methylene chloride, then trichloromethane means chloroform, triiodomethane means iodoform, and tetrachloromethane means carbon tetrachloride. ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखेंगे. चलिए पहले लेते हैं डाइक्लोरोमीथेन. सो ये तो यूज है, तो उसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आपको प्रिपेयर करने हैं. दे आर यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल. जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं उसमें मिथिलीन क्लोराइड ये ज़्यादा अच्छा नहीं है. हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, बॉडी स्प्रे ऐसा जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये प्रोपेलेंट मतलब कि जो उसका पार्टिकल्स होते हैं, इफेक्टिव पार्टिकल, उसको लेके हवा में चलते हैं. ठीक है, CH2Cl2 उसी पार्टिकल को लेके हवा में फैल जाता है, इसलिए प्रोपेलेंट इन एरोसोल. ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये सॉल्वेंट में भी यूज़ आता है, मेटल क्लीनिंग में एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट में भी ये काम आता है. अब क्वेश्चन आएगा कि फिनिशिंग सॉल्वेंट क्या है. जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी डिसोल्व करनी है, ठीक है, प्योर कंपाउंड लेना है, तो इसको फिनिशिंग सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे हम कोई मकान बनाते हैं, बोले कि अब कितना बाकी है, अब फिनिशिंग बाकी है, बन गया है. ठीक है, तो जब भी कोई मटेरियल बनता है, मेटल, खास करके मेटल में जब क्लीनिंग हो जाता है तो बाद में उसको फिनिशिंग सॉल्वेंट, एज अ फिनिशिंग सॉल्वेंट यूज हम लोग करते हैं. चलिए अब चलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन.
तो इसका नाम क्लोरोफॉर्म भी है, ये एक अच्छा सॉल्वेंट भी है, फैट के लिए अच्छा सॉल्वेंट है, ऑयल्स के लिए अल्केलॉइड्स, अल्केलॉइड्स मतलब कि जो नशे वाली चीज़ें आती है, निकोटीन है, मॉर्फिन है, ठीक है, उसके लिए, आयोडीन के लिए अच्छा सॉल्वेंट है, और काफ़ी सब्सटेंसेस है जिसका लिस्ट नहीं दिया गया है। क्लोरोफॉर्म वो रेफ्रिजरेंट फ्रेयोन, ये R22 आपको याद नहीं रखना है, वो एज अ रेफ्रिजरेंट भी काम आता है, उसका जो मार्केट नाम है वो नाम है फ्रेयोन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में जो हम गैस डालते हैं उसमें एक कंपोनेंट ये भी होता है, एक कूलिंग एजेंट है। और सबसे बढ़िया यूज़ है एनेस्थेसिया, सर्जरी जब करते हैं तो हम पेशेंट को अनकॉन्शियस मूड में उसको, उसकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको इनर्ट रखते हैं। तो आज की डेट में तो जो है लेस टॉक्सिक एनेस्थेटिक ईथर यूज़ किया जाता है, लेकिन ओल्डन टाइम में जब मेडिसिनल केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी तब एनेस्थेटिक क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता था। तो ये भी आप लिस्ट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन तो ख़त्म हो गया। ट्राईआयोडोमीथेन तो पुराने ज़माने में ये भी एक अच्छा एनेस्थेटिक था, लेकिन इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो लिबरेशन ऑफ आयोडीन जो होता है, जब बर्निंग स्किन, आप जो कोई बर्नोल ऐसी कोई स्किन जहाँ पे बर्न हो गई है उसके ऊपर लगाने की ऑइंटमेंट आप मार्केट से लेते हो तो उसमें एक आयोडीन कंटेंट होता है, वो ट्राई आयोडोमीथेन है। जब आप लगाते हो तो आयोडीन जब निकलता है तो उसकी हीलिंग इफेक्ट आती है, जो जलने की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, अच्छा लगता है। तो ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक है, वहाँ पे फिर ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। तो फिर से ये देख लीजिए, एज ए एंटीसेप्टिक, एज अ नहीं, एनास्थेटिक ये यूज़ नहीं होता है, सिर्फ एंटीसेप्टिक ही यूज़ होता है। मैंने बोला पहले कि एनास्थेटिक यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म पुराने टाइम पे यूज़ होता था, ये सिर्फ एंटीसेप्टिक है। और इसकी एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टी है वो मैंने समझा दिया है कि ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन, आप इसमें इतना ही लिखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। चलिए उसमें चलते हैं। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC, आप 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। एंड अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, एंड जनरली इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ओके, तो ज़्यादातर इसका यूज़ जो होता है तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल कैंस। एरोसोल जो वो एक स्प्रे है, जितने हम स्प्रे यूज़ करते हैं वो एरोसोल है, ठीक है। तो एरोसोल कैंस मतलब वो एक सिलेंडर में भरा हुआ सब आता है एरोसोल। तो इसमें एक तो पहले बताया डाइक्लोरोमीथेन, और ये जो है फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज़ इसमें होता है। अब 1960 के टाइम पे एंड इट वाज वाइडली यूज्ड एज अ क्लीनिंग फ्लूइड। ओके, कुछ साफ करने के काम में भी आता था। डिग्रीसिंग एजेंट, ग्रीस को दूर, अगर आपने कहीं पे ग्रीस ऑयल जैसा लगाया है तो वो निकालने के काम में आता था। हमारे घर पे ये लिक्विड पड़ा रहता था। स्पॉट रिमूवर, कहीं पे कोई, एंड फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे बढ़िया यूज है फायर एक्सटिंग्विशर। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है CCl4 इज यूजफुल एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। कोई छोटी मोटी आग लगी है तो आप CCl4 का स्प्रे लगा के उसको बुझा सकते हो, ठीक है। अब आती है बारी फ्रेयोन्स की, ठीक है। तो फ्रेयोन्स कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने बताया फ्रेयोन्स आर द रेफ्रिजरेंट
दे आर ऑल्सो पोल्यूटेंट। काफ़ी फ्रेयॉन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में, डिफरेंट डिफरेंट एरोसोल्स में यूज़ होते हैं। तो फ्रेयॉन्स का यूज़ क्या है? फ्रेयॉन्स का यूज़ जो है वो एरोसोल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशन में जो हम गैस भरवाते हैं उसमें, ये सब जो है CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, मीथेन के या तो इथेन के। ये जो मीथेन और इथेन में से उसमें फ्लोरीन क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन करके नए नए कंपाउंड बनाए जाते हैं, उसको हम फ्रेयॉन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड है वो एक्सट्रीमली स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, टॉक्सिक भी नहीं है, कोरोसिव भी नहीं है, नॉन कोरोसिव, एंड दे इजीली लिक्विफाइड। ठीक है, फिर भी ये एयर पोल्यूटेंट है। उसमें से एक फ्रेयॉन जो है फ्रेयॉन 12 CCl2F2, किसका ये डेरिवेटिव है? मीथेन का। कार्बन की 2 वैलेंसी है जो है क्लोरीन से सेटिस्फाइड है, एक फ्लोरीन से और एक हाइड्रोजन। इसका नाम है मार्केट में फ्रेयॉन 12। तो ये फ्रेयॉन 12 जो है वो एक मोस्ट कॉमन फ्रेयॉन है जो आज के टाइम में यूज होता है। ओके, और इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। बाय विच रिएक्शन? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो एक नेम रिएक्शन आ गया स्वार्ट्ज। ठीक है, वो भी आगे सिलेबस में है तो देखेंगे। तो आप ये यूज जो है एक एक कंपाउंड के एकदम सिस्टमेटिकली आप नोट कर लेना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लेना। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन नहीं है बुक में। ठीक है, ये कुछ अल्केन का हेलोजन के साथ रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन मेरे ख्याल से आगे कहीं पे भी हम पढ़े होंगे। ये जो सब है एरोसोल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग पर्पस। ओके, आज की डेट में फ्रेयॉन का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप पढ़ लेना आप, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, मुझे सिर्फ यूज़, आप शॉर्ट में यूज़ लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है कि आप फ्रेयॉन 12 किस मेथड से मैन्युफैक्चर कर सकते हो? फ्रेयॉन 12 by which method you can manufacture, then it can be manufactured by Schwarz reaction। आगे आ चुका है शायद। ठीक है, तो उसको आप रिफर कर लेना। तो यहाँ पे ये सब कंपाउंड्स का जो यूजेस है, जो कंपाउंड आज की डेट में हेलो अल्केन हेलो एरिन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इसके सब यूज़ है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। अगर कोई वर्ड में नहीं समझ आता है तो मुझे पूछ लेना, या तो अपने आप प्रिपेयर कर लेना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ हमें कुछ अकॉर्डिंग टू योर डिमांड कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व करने हैं। जैसे कि हमारे इंटेक्स क्वेश्चन में दिखाया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दैट इज़ आइडेंटिफाई ABCDER&R इन द फॉलोइंग। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये पहला रिएक्शन आप देख लो, देख लिया? सोचो, आंसर को मत देखो प्लीज, ये गलत बात है। डोंट सी द आंसर्स। तो जब आप पहला रिएक्शन देखेंगे तो सीधा आइडिया आएगा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। तो ये Mg डायरेक्ट ड्राई ईथर से ही पता चलेगा। ड्राई ईथर से क्या पता चलेगा? या तो वुड्स हो सकता है, या तो वुड्स फिटिंग हो सकता है, या तो फिटिंग हो सकता है, या तो ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन हो सकता है। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी ये MgBr। सॉरी, ये साइक्लोहेक्सेन है तो ये बेंजीन वाला राउंड मत लगाना। अब इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है ना? यस, सेकंड स्टेप में आपको हाइड्रोलिसिस। तो ये ए प्रोडक्ट आ गई, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस, वाटर में से H प्लस एंड OH माइनस, OH माइनस यहाँ Mg के साथ जाएगा, H प्लस यहाँ अंदर एंटर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन रिंग में। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी? तो पहली प्रोडक्ट मिलेगी साइक्लोहेक्सेन, दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड।
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड के बारे में आपको पूछा नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है, आपको ये पूछा है, तो ये रहा बी और ये रही प्रोडक्ट ए। ठीक है, बहुत इजी है। अब दूसरा रिएक्शन जो है आपको थोड़ा सोच लेना है कि क्या है आर। अब देखिए CH3 मेरे हिसाब से आर डिसाइड करना है ये प्रोडक्ट को देख के। तो ये प्रोडक्ट ऐसे हो सकती है CHBr फिर से लिखता हूं मैं, ये देखिए CH3Br। ठीक है, उसका आपको Mg के साथ रिएक्शन करना है। आपको कंपाउंड नहीं पूछा है, आपको सिर्फ पूछा है कि आर पार्ट क्या होगा, तो आर पार्ट इतना ही होगा। और लास्ट में आपकी ये प्रोडक्ट आ जानी चाहिए, रिवर्स चलना है आप लोगों को। अब मैं Mg के साथ रिएक्शन करूंगा तो मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मिलेगा CH3CH3MgBr। हो गया। चलिए देखते सही है कि गलत है। क्या मिला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें? CH3MgBr। इसका हाइड्रोलिसिस करो तो OH इसके साथ जाएगा, हाइड्रोलिसिस D2O से करना है D, तो OD इसके साथ जाएगा MgBr, यहाँ से टूट जाएगा ये माइनस ये प्लस, तो हमें मिलेगा CH उसके साथ ड्यूटेरियम हैवी वाटर का और CH3 और बाय प्रोडक्ट मिलेगी MgODBr। OH नहीं है, D है, ODBr। ठीक है, तो यही प्रोडक्ट है यहाँ पे देखिए, तो हमारा आर पार्ट ये आंसर है। देखो एक बार रफ में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ठीक से देख लो रिएक्शन और प्रैक्टिस करो इसकी। सेकंड आई एक्सप्लेन, आंसर से आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है, इस साइड आना है। आंसर आपको प्रोडक्ट फाइनल दे दी गई है, उससे आपको आर पार्ट डिसाइड करना है कि कौन सा आर पार्ट हो सकता है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सही से जानते हो तो आपको सिर्फ यही पूछा है कि ये डिसाइड करो। ठीक है ना, दूसरी बार समझाने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करना। अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। इसमें पूछा है आपको ये कि अगर मेरे पास है R-X, इसको अगर मैं Na और ईथर के साथ रिएक्शन करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट ये मिलेगी। तो अब दिमाग लगाओ कि ये क्या हो सकता है, R- क्या हो सकता है। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये है CH, तीन साइड CH3 और यहां पे लगा दो X। और आपको ये देख के ही पता चल गया है कि ये वुड्स रिएक्शन है। कौन सा है? वुड्स। दो आर पार्ट मुझे कंबाइन करने, इसके आधे पार्ट कर दो तो एक अल्काइल ये हुआ, दूसरा अल्काइल पार्ट ये हुआ, तो दोनों के पास क्या होगा? X। अब ये X जो है 2Na के साथ कंबाइंड होके 2NX, तो ये एक ये पार्ट और ऐसा दूसरा पार्ट जो है वो कंबाइंड होके यहाँ पे जो पिक्चर ड्रॉ किया है, जैसे C और यहाँ तीन जगह पे CH3, यहाँ पे तीन जगह पे, यही तो ये कंपाउंड है। तो R- आपको पता चल गया। अब क्या पूछा है? R-X का Mg के साथ रिएक्शन करेंगे तो D मिलेगा, तो R-X क्या था हमारा? चलिए लिखते हैं, R- ये था
CH3 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 X, ये R डैश था। किसके साथ रिएक्शन करना है साहब? Mg के साथ। तो कुछ नहीं है, ये Mg यहाँ पे बीच में आ जाएगा, MgX हो जाएगा। तो ये आंसर डी आ गया। उसका हाइड्रोलिसिस करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे, Mg बीच में आ जाएगा तो कैसे बनेगा कंपाउंड? चलिए ये भी लिखते हैं। ये CH3 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 MgX, यहाँ से टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस। अब किससे करना है? H2O से हाइड्रोलिसिस करना है। तो OH इसके साथ जाएगा, MgOHX, और हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। तो कंपाउंड जो कौन सा फाइंड करना है इसमें? D के बाद E। हाँ, तो E होगा हमारा, यहाँ पे H लग जाएगा पहले जो मैंने ड्रॉ किया था, CH3C CH3 CH3 और यहाँ पे H। ठीक है, देख लीजिए आंसर एक बार, मैंने समझा दिया है। कौन सा रिएक्शन है? थर्ड रिएक्शन, R डैश, ये रहा आपके सामने। फिर ये पूरा आंसर। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये जो है ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, सॉरी नॉट वुड फिटिंग, सॉरी वुड्स रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है। इसके बाद ये जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। और बाद में जो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करना रफ में, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक अप टू 9 क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व, सॉरी वी ऑलरेडी सॉल्व। तो क्वेश्चन को पढ़िए। आपको बीटा एलिमिनेशन का सब में यूज करना है, सभी जो क्वेश्चन है वो बीटा एलिमिनेशन। तो वो क्वेश्चन, ये पार्ट देखने से पहले वो थोड़ा क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, आपको सब में अल्किन प्रोडक्ट मिल सकती है। तो चलिए, तो सोल्व करने से पहले आपको बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन कितने हैं वो ढूंढ लेने। तो जिस कार्बन के पास हेलोजन है और जो आप बाजू वाला कार्बन जो जिसको आप बीटा कार्बन नाम देते हो, ठीक है, वो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए फास्ट फास्ट सोल्व कर लेते हैं। बाकी का 1-2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। ये 3 सोल्व कर लेते हैं। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, ये आपको बनाना है अपने आप। ठीक है, तो ये देखिए 1 ब्रोमो 1 मिथाइल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। ये है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, ये 1 नंबर 1 ब्रोमो, ये CH3 है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए इसमें ये अलग हाइड्रोजन नीचे इसलिए हैंग किया है कि आपको पता चले कि कितने हाइड्रोजन, ये राउंड में कर रहा हूँ, वो दोनों बीटा हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बन के पास ये हेलोजन है। या तो ये हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेंगे या तो ये हेलोजन और हाइड्रोजन निकलेंगे। तो अगर पहले वाला होता है ब्रोमीन हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, और ये वाला निकलता है ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन जो मैं ब्लैक अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट मेजर है और ये प्रोडक्ट माइनर है। थोड़ा सोच लेना। अकॉर्डिंग टू सेज़ेफ रूल और जेटसेफ रूल, जो अल्किन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास ज़्यादा अल्केन ग्रुप है, तो चलिए देखते हैं। ये पहली वाली प्रोडक्ट है, उसको यहाँ भी अल्केन ग्रुप है, यहाँ भी अल्केन ग्रुप है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये माइनर है क्योंकि उसमें कम अल्केन ग्रुप है, अल्केन ग्रुप है। यहाँ पे यहाँ CH3 है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है हाईली स्टेबल है, ये इतना प्रोडक्ट नहीं है, माइनर है। सेज़ेफ रूल जरा देख लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है इसमें? इसमें है ये अल्फा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन, ये 2 बीटा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन। सबको निकाल के आप प्रोडक्ट डिसाइड करो। H2C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2CH3। पहली प्रोडक्ट तो ये आएगी। तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास एक ही कार्बन पे, एक कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कहाँ, ये रही देखो। अब दूसरी प्रोडक्ट बनाते हैं, कहाँ से निकालेंगे? नीचे से निकालेंगे, ये वाला। तो कंपाउंड कैसे बनेगा देख लो। H3C C डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH3। तो पहले बनाया था और ये बनाया, इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के तो अल्काइल ग्रुप। तो अगर आप बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हो और यहाँ से निकालते हो तो कंपाउंड एक ही बनेगा और ये रहा। तो ये या तो इस CH3 से निकालो या तो इस CH3 से निकालो। ठीक है, तीसरा देखते हैं, यहाँ से निकलता है तो क्या होता है? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, एक हाइड्रोजन निकाल देना है ना, बीटा एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH। ये इथेनॉल जो है ना, वहां पे आप समझ लेना इथेनॉल मतलब कि अल्कोहलिक KOH है। इथेनॉल से करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये कि अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन हो गया ये दूसरे का, ये बहुत बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव में 1-2 बार पूछा जा चुका है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। ज़्यादा टाइम ना लगे तो सीधा हम कंपाउंड ही ले लेते हैं। इसमें बीटा एलिमिनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो ये सब जब आप बीटा एलिमिनेशन करो ना तो विथ सोडियम इथोक्साइड बोलते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये NaOH और KOH प्लस इथेनॉल। इथेनॉल में इसका सॉल्यूशन, इसका ये जो सोडियम इथोक्साइड, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें कहीं पे KOH तो है नहीं, यहाँ पे दिया है NaOH। तो अल्कोहलिक बेस हो गया ऑटोमेटिक। तो आप वही जो मैंने सिखाया उसी तरह आप ये रिएक्शन करना। यहाँ C2H5O माइनस दिया है तो कंफ्यूज मत होना, उसमें KOH या NaOH तो रहेगा ही। चलिए ये तीसरा देख लेते हैं। ये हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है, कितने अल्फा? यहाँ पे तो है नहीं, बीटा हाइड्रोजन, 2 बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो अगर यहाँ से हेलोजन और हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऊपर से निकालूंगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप डिसाइड करना कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास CH3 और यहाँ एक अल्काइल ग्रुप और ये बड़ा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसको देखें तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो कौन सा मेजर होगा? ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। अपने आप भी समझने की थोड़ी कोशिश करना, हालांकि मैंने सब कुछ समझाया है, फिर भी अगर जब तक आप बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर बुक में प्रैक्टिस करने की चीज़ है। ठीक है, ऐसे सुनने से देखने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पाती है। जब तक आप खुद से नहीं निकालेंगे, आप खुद अल्फा बीटा
ये डिसाइड नहीं करेंगे, जहाँ से हेलोजन हाइड्रोजन निकलता है वहाँ वहीं पे ही डबल बॉन्ड लगेगा। उसके बाद जेज से रूल नहीं लगाएंगे आप बैठ के जगह पे शांति से, तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ सकती है, आप रिप्रेजेंट पेपर में नहीं कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही वो पॉइंट है, वीक पॉइंट है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो समझ में आ गया, जब तक मैं समझाऊंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब आप करने बैठेंगे तो नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करना। ये सॉल्यूशन आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन है तो इसको ही समझना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। रिपीटेडली आप नहीं करेंगे तो ये आप भूल भी जाओगे, ठीक है। तो और कुछ कन्वर्जन है वो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये लेसन एक या दो लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।